हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर द लायर। लायर मतलब झूठा। स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। ये मुल्कराज आनंद ने स्टोरी के कैरेक्टर यहाँ बनाए, इन्हीं की स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। When Labu came back, however, he limped about and seemed ill. It was very sad to see him broken and dispirited. यानी कि बहुत डिस्पिरिटेड था, वो थका हुआ था। I forgot all the scandal and I had heard about him in my bafflement at the sudden change that had came into his character, for he was now no longer the garrulous man who sat telling stories to old men and young boys, but a strangely recitant creature who lay in a stupor all day moaning and murmuring. कुछ से बातें बड़बड़ाने वाला, पहले वो स्टोरी सुनाता था, वो शांत हो गया, खुद में ही बातें करता। In a prolonged delirium, except that he occasionally hobbled out with a huge staff in his hand in the evenings. ये जरूर करता था evening. I was afraid to go near him because he always wore a forbidding angry look. हमेशा डरावना रूप, है ना, एकदम गुस्से जैसी शक्ल बनाए रहता था। But the villager did not seem to think there was anything in the matter with Labhu. तो गांव वालों को ऐसा नहीं लगता था कुछ मैटर है। As I heard them say, now that we have no patience with him and his stories, he spends most of his time telling them to himself, the fool. क्या ज़्यादा टाइम तो इसी में बताता था, मूर्ख कहने में। I owed a loyalty to Labu, for I had discovered a kingship in my makeup for all those extra venges for which the shikari was so well known. ये तो इनकी लॉयल्टी थी लबू की, शिकारी को बहुत अच्छे से पता था, किनशिप थी उसकी मेकअप में। So I went up to him one day as he lay on a broken string bed near his mud. अपने कीचड़ के पास लेटा हुआ था। Hut under the precarious shelter which a young people gave him. You have returned then, Master Labu, I said. मैंने कहा भैया तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। Yes, he said. I have been back some time, son. I looked for you, but you did not seem to be about. But you know, the man who is slain cannot walk even to his own house. This leg of mine pains me and I can't get about I used to. तो उसके पैर में बहुत दर्द था। उसने कहा भाई जो मैन स्लेन है वो तो वॉक भी नहीं कर सकता, तो कैसे घर तक पहुंचेगा। What happened to your leg then? तो पूछा भाई तुम्हारी टांग को क्या हुआ। I asked, realizing that he had forgotten all about our past quarrels and was kind and communicative to me as before. तो उन्होंने कहा भाई सारे झगड़े भुला दिए, अब जो पहले की तरह बन गया, मुझसे बात कर रहा। Did you fall down a cliff or something? क्या तुम एक चोटी से गिर गए या कुछ और बात है तुम्हें चोट लगी? No, he said in a tired voice. थकी हुई आवाज में उसने कहा नहीं। And he kept quiet for a long while. चुप रहा वो। What happened then? I persisted. फिर मैंने उससे पूछा तो फिर क्या हुआ? You know, तुम जानते हो सन। Labu began at first pale and hesitant, then smiling and lifting his eyebrows in the familiar manner to the old days. I went away on a hunting tour in the pay of the Subedar's eldest son, Kuldeep Singh, and some of his friends. Well, we went to Nepal through the Kullu Valley. कुल्लू घाटी से निकलते हुए हम कहाँ गए? नेपाल शिकार के लिए गए थे, जो कि सूबेदार के बड़े लड़के कुलदीप सिंह ने उसको और उसके दोस्तों ने पैसे दिए इसके लिए। दे हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ हंटिंग इन दिस और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई लेड देम अक्रॉस सच ट्रेल्स एज आई न्यू एंड सच एज द लोकल शिकारीज टोल्ड मी अबाउट दैट बॉय कुलदीप। आई डोंट नो व्हाट ही डज इन द आर्मी। उसने आर्मी में क्या किया मुझे नहीं पता, बट ही कांट शूट एट एनी रेंज एंड द साहिब्स विद हिम वर क्लमसी। उसके साथ साहिब से वो भी क्लमसी थे। परब्लाइंड वाइट मैन, वो जो एकदम सफेद चितकबरे से सफेद जो हैं। आई वुड पॉइंट टू अ बीस्ट विद माई स्टिक एंड दो दे कुड सी द हाइड बिफोर देयर आईज दे बंगल्ड विद देयर guns or were too noisy on their feet and away crashed the bull which we had been tracking. I would grunt, shrug my shoulders and did not mind because they were like children. वो बच्चों की तरह थे, तो मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया इन सब चीज़ों का। They had finished hundreds of cartridges and had not shot anything and daily begged me to help them to secure some game. इतने कार्टेज उन्होंने खर्च कर दिए, इतने उन्होंने अपने जो है गोलियां जो खर्च कर दी हैं
फिर भी एक शिकार नहीं कर पाए वो. At first I told them that game does not taste sweet unless it is shot by oneself. But at length I took pity on them and thought that I would secure them a good mixed bag. I shot 12 tigers. मैंने 12 tigers shot किए with my gun and 15 panthers, 15 panther in my course of 7 days and many stag. बहुत सारे हिरन 7 दिन में मैंने इतने शिकार किए. On the 8th day, we saw a monster which had the body of a bear, the head of a reindeer, the feet of a god, the tail of a wild bull, and a glistening fibrous tissues all around it like the white silken veil which the Rani of Bundi wore when she came to visit Subedar Deep Singh's wife. तो सुबेदार दीप सिंह वाइफ को विजिट करने आती देखती आती थी, तो वो इस तरह का मैंने एक कौन देखा, मॉन्स्टर देख लिया. उसकी बॉडी तो थी भालू की तरह, उसका सर था रेनडियर की तरह, उसकी टांगे थी गॉड की तरह, उसकी पूंछ जो थी वाइल्ड बुल की तरह थी, है ना. ओके. कुलदीप सिंह एंड द साहिब्स वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ दिस अपैरिशन. इस तरह का देख के वो तो सब डर गए. एंड सेड इट वाज द डेविल हिमसेल्फ. ये तो खुद ही डेविल है. Who had the shape of an earthly being and who would soon breathe a breath which would mix with the still air of the night and poison life. तो सब डर रहे थे उसको देख करके. They were all for killing it outright, while I was sure that it was only a princess of the royal house of Nepal. और मुझे पता था ये रॉयल हाउस नेपाल की प्रिंसेस है. who had been transformed by some magician, जो किसी magician ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस fantastic shape और size. And I wanted to catch it alive and bring it home to be my bride. अपनी दुल्हन बनाना चाहता था उसे जिंदा पकड़ के. Labu went on to relate how beautiful she was and how he resolved to restore her to her normal self by reading magical incantations. जो जादुई पंक्तियां थी, जादुई जो श्लोक थे उनको पढ़ रहा था वो. I told her I loved her, he continued, and she smiled shyly. But some fool, I think it was the सूबेदार son, fired a volley of shot. लेकिन मैं जब तक ये बात कर रहा था तो सूबेदार का जो लड़का था वो मूर्ख, उसने गोली चला दी है, उसे डरा दी और वो दौड़ गई. और क्या हुआ, कैलाश पर्वत की तरफ वो भाग गई. I was bent on rescuing my beloved, and I leapt from one mountain to another, calling after her to stop. But that idiot Kuldeep and the Sahibs kept on shooting and Rose, the magician who kept guard over her, and this evil sage threw a huge mountain of snow at me to kill me. उसने बहुत बड़ी माउंटेन स्नो मेरे ऊपर फिर फेंकी. I just blew a hot breath, and the mountain of snow cracked into a million pieces and hung about the sky like glittering stars. Then the magician struck the earth with his feet and opened up a grave to bury me alive. Magician ने क्या किया, जमीन खोद दी एकदम और मुझे गाड़ने की कोशिश की जिंदा. I leapt right across the fissure and found myself on a peak in the land of lava who never dies. एक लावा के लैंड पर मैं वहां अपने आप को पाता हूँ. By now, of course, the magician had hidden the beauty away in some cave. So I gave up the chase, as there was the doom of death about his beauty anyhow, and I made one leap across the Himalayas for home. And as you landed this side of the mountains, you sprained your foot, I said. Love lifted his eyebrows funnily in the manner of the old days and laughing said, Have I told you this story before then? क्या मैंने ये कहानी इससे पहले सुनाई? चोट लगी थी, वो उसने कहानी बता दी कैसे चोट लगी, बट रियल में ये कहानी थी. यू लाइक स्टोरीज, अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो किस तरह की स्टोरीज आपको पसंद, रीड और लिसन यहाँ पे आप लिखें. अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ. 3 तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा जीरेंड, तीसरा पार्टिसिपल. इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव, जैसे यहाँ पे लिखा. कहीं कहीं जो है थर्ड फॉर्म भी चल रही है, आप देख रहे हैं. जिसके साथ टू लगता है वो फुल इन्फिनेटिव होते हैं और जिसके टू नहीं लगता वो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं. ठीक है, जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन.
टू बी अ जेंटलमैन, तो ये इन्फिनेटिव नहीं है। टू सेम है, टू स्टॉप है, टू विन है, टू प्रेज, राइट। अब हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट इनफिट। फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ही वॉन्ट्स टू प्ले फ्लूट, ही इज गोइंग टू डू हिज होमवर्क। I was made to made to offer भी लिख सकते हैं, राइट। It is his hobby to collect stamps. Being in a boring job, I decided to quit. या लीव भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आ जाते हैं करेक्ट स्पेलिंग गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स की स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी, तो आप कर लीजिएगा। जैसे पिच है, PITCH पिच। फेवर है, FAVOUR कर दीजिएगा। डम है, डम। डम क्या होता, डैम हो सकता था। माइक्रोस्कोप है, ऑस्किलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, मोज़ेक है, डॉकर है, इंडिजियस है। ये क्या लिखा है, इंजुडिशियस, इंजुडिशियस, इंजुडियस, फिर तो ऐसा होगा। एस्केप है, एस्केप होता है, एस्केप, है ना। चलो, स्टोरी आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट। एक स्टोरी सुनिए अपने टीचर से, पेरेंट्स से, जिससे भी, और उसको यहाँ पर नोट करिएगा अपने वर्ड्स में, जो भी स्टोरी आपने सुनी। क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर के। व्हेन लवू केम बैक ही सीम्ड, कैसा दिख रहा था, इल, टायर्ड, बीमार था। लवू वॉज ए फार्मर, था शिकारी, वो था शिकारी। लवू वेंट ऑन ए हंट विद द सूबेदार, सूबेदार के कौन, सूबेदार के लड़कों के साथ, सूबेदार सन है। लवू एंड कुलदीप वेंट टू, कहाँ गए वो, नेपाल गए। ऑन द 8th डे दे सॉ ए, क्या देखा उन्होंने, मॉन्स्टर देखा, राइट। क्वेश्चन आंसर नोटबुक के हैं, नोटबुक पे आप करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर पढ़ के अगेन आपको यहाँ से ही करना है। और चलते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब दिए हैं और उनके मीनिंग हमें यहाँ दिए गए। जैसे एक्ट फॉर मतलब वर्क इन प्लेस ऑफ द अदर, दूसरे की जगह काम करना। बियर विद मतलब पेशेंस रखना, है पेशेंस। ब्रेकआउट मतलब अचानक से प्रकट हो जाना, अपीयर ऑल ऑफ ए सडन। कॉल इन मतलब किसी को भेजना, सेंड फॉर। कैरी अवे रिमूव कर देना। ड्रॉ आउट एक्सपेंड करना या मेक वन स्पीक। चलिए बनाते हैं हम लोग। कास्ट ऑन, कम ऑन भी होता है, कम ऑन। गेट इन होता है, डू विद होता है, फॉल इन होता है, फॉल बाय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।